Okay. I hope I'm audible properly and visible properly. Am I? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Perfect. So, doctor, with the complete, we started the cell cycle. Cell cycle, we learned that there are two phases. One is interphase and one is M phase. One is interphase and one is M phase. Interphase has three subphases. Interphase has three subphases, and those three subphases were G1, S, and G2. Am I right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Among these G1, S, and G2, there are only one synthetic phase in which DNA was replicated. That was S phase. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Perfect. And G1 was known as post-mitotic gap phase, whereas G2 was known as pre-mitotic gap phase. Am I right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Perfect. So the phases were G1, S, G2, and M. Yes or no? Yes, sir. Yes, Perfect. Yes, Perfect. sir. So G1, S, G2, M, and followed by cytokinesis, followed by G0 phase. If the cell is not at all dividing after, once it forms throughout the lifetime, it will never go for the division, then it will enter into G0. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Which cell will enter in which phase, that is controlled or checked by two checkpoints. What were those? CG1 and CG1 CM. and CM. G1 and CG2. Perfect. CG1 and CM. Cyclic CG1, that is CDK cycline actually, and mitotic cycline, that is CM. Perfect. Yes, sir. Yes. And their energy status. Their energy status, whether the sufficient energy and nutrition are available or not. Based on the availability of nutrition and energy, they re-entered into the cycle. See, G1S, G2M, G1S, G2M, G1S, G2M. Agreed? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. If cell finds that, Zuna पूछ रहे हैं, sir, what is mean by cycline? Cycline is a compound, my dear. Cycline dependent kinase. Cycline एक protein है जिस पर dependent एक enzyme है, that is cycline dependent kinase known as CDK. Zuna. Okay, sir. Perfect. So, based on the availability of nutrition, based on the availability of energy, they re-enter into the cycle again G1S, G2M, G1S, G2M. But if they enters into G1, stays there and back to G0, then those cells, such cells never ever re-divide. Yes or no? Yes, sir. क्योंकि मैंने जीवन का नियम भी बताया था दोस्तों, एक बार आगे बढ़ गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता, और यदि पीछे मुड़ के देख लिया तो फिर वो कभी रिसाइकल सेल साइकिल में री एंटर नहीं होता. अग्रीड? Yes, sir. इसी से रिलेटेड जीवन के इसी एस्पेक्ट से रिलेटेड आज एक बढ़िया सा मैसेज डाला था मैंने सुबह सुबह. गुरु भाई, Yes, sir. क्या लिखा था मैसेज की बोल्ड लेटर में? एक लाइन लिखी थी बड़ी शानदार सी. क्या लाइन लिखी थी? अरे यार पूरा तुमने तो इज्जत ले ली उस Sir. हाँ बोलो. Sir, it was sir, in Hindi it was that मन की ताकत और संकल्प की शक्ति. No, sir. After that, स्वनिर्मल लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो पीछे मुड़कर देखना व्यर्थ है. हिंदुस्तानी हो, हिंदी में टकरे हो दोस्तों. मन की ताकत और संकल्प की शक्ति, पहली बात तो ये हो गई है ना. और दूसरा मैंने बताया था कि यदि स्वर्णिम लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो पीछे मुड़कर देखना व्यर्थ है. समझे कि नहीं? समझे सर. साक्षी मैडम समझे कि नहीं? Yes, sir. चलिए, एनीवेज, तो मैंने आपसे कहा टेक्निकल बात पर आते हैं. Once the cells, sir, can reproductive cells go into G0 phase in any part of their cell cycle? Yes, they can. Reproductive cell means what? Reproductive cell क्या होती है? Reproductive cell होती है
टेस्टिस का स्पर्म और ओवरी का ओवा. दिस सेल कैन बी टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव सेल्स. ये G0 में नहीं जाएगी, बट ये अरेस्ट हो सकती है और ये अरेस्ट होती है. मैंने आपसे कहा भी था, शायद न बताया हो, लेकिन अभी बता दूं, ये सेल का अरेस्ट होना बहुत नॉर्मल कोर्स और रेगुलर कोर्स में फीमेल में देखा जाता है. When females were in the womb of their mother, जब फीमेल चाइल्ड, फीमेल फीटस अपनी मदर के वॉर्म में होते हैं, उसी समय वो अपनी अपनी ओवरी में ऑलमोस्ट 80 लाख फॉलिकल बना लेते हैं. उनकी ओवरी में 80 लाख टाइनी फॉलिकल्स बन जाते हैं. फिर जब उनका बर्थ होता है, तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, मींस आई एक्सपेक्ट 8 to 10 years और 11 years और 12 years. सो ये 8 से 10 साल में वो 80 लाख फॉलिकल्स में से बहुत सारे फॉलिकल्स डिस्ट्रॉयड होते रहते हैं. दिस इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया, बट बॉडी से रिलीज आउट नहीं किएगा. दैट इज फॉलिकुलर एट्रेसिया, खत्म होता जाता है, अट्रॉफी उनकी होती रहती. बट once the first follicle ruptures, comes into the uterus and releases out on the body, this is known as first menses or the onset of menstrual cycle, or known as menarche. This is the sign of puberty. उसके बाद हर महीने में एक एक हुआ निकलता है. That means क्या हुआ कि 80 lakh follicles was arrested. 80 lakh follicles were arrested in a phase. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के फेज में वो स्टक हो गए. और जैसे ही वो हार्मोनल चेंज आता है, फिर वो धीरे 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 ग्रोथ करते हैं और बॉडी से रिलीज होना शुरू होते हैं. इन अ साइकिल, इन अ मंथ और इन अ ड्यूरेशन ऑफ 28 days, वन ओवा रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी. सो ऐसा एक साइकिल चलता रहता है. दैट इज सेल अरेस्ट, नॉट द G0. डॉक्टर मोहाड़ीकर, अंडरस्टूड? यस सर. सो बच्चों, आज मैंने अब आपको एक एक स्टेप लिखानी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. और मैंने एक इमेज तो आपसे पहले भी शेयर कर रखी थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ये सारा अपने डिस्कशन कर लिया था. राइट? चलिए, तो हेडिंग डालते हैं बच्चों. सबसे पहले प्रोफेज, माइटोटिक डिवीजन हमें लिखना है, उसको हेडिंग डालते हैं माइटोसिस. माइटोसिस के पॉइंट्स लिख लिए थे क्या बच्चों? नो सर. नो सर. नो प्रॉब्लम. माइटोसिस के भी पॉइंट लिखते हैं. हेडिंग डालिए माइटोसिस. The division, first point, the division in which number of chromosomes in daughter cell, sorry, number of chromosome in daughter cell remain same as Parent. parental cell. I hope it's visible now. Yes sir. Same as parental cell. That means मैंने क्या कहा? If you started with 46 number of chromosomes, it will divide into 2 and will remain what? 46. Agree? Yes, sir. Perfect. Point number two. Just wait. हमने G0 के बारे में लिख लिया था बच्चों, या नहीं लिखा था? लिख लिया था सर. लिख लिया सर. Okay. Called as equational division.
Why it is called equational? Anyone? Because both the daughter cells have same number of chromosomes. As their parental cell, okay? Also known as somatic cell division. Also known as somatic cell division. Noted? Because, Yes. because responsible for somatic growth. Responsible for somatic growth. In plants, it is mainly in meristematic. It is mainly in meristematic tissue. It is mainly in meristematic. What do you mean by meristematic tissues? अरे meristematic tissues पढ़ा होगा 9th 10th में. The cell which divides. अरे keep on dividing. Sorry, the tissue which divides. हाँ, keep on dividing. Root apex, shoot apex, apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem पढ़ा होगा ना 7, 9, 10 में. Yes or no? Yes, sir. Okay. In animals, it is mainly for somatic growth, healing, or repairing. Healing or repairing. Noted? दो स्टेजेस मैंने बताई थी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. Cytokinesis. पहला लिखते हैं बच्चों व्हाट? Karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस. अजान भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं अब धीरे धीरे? Yes, sir. क्योंकि अजान तुम्हारे इसमें जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है लकीली उसका पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है. यदि आप थोड़ा भी पढ़ते हैं और थोड़ा भी मोमेंटम बनाते हैं तो इजी हो जाएगा. वेदिका कदम Yes. समझ में, वेदिका समझ में आ रहा है कि नहीं? वेदिका कदम समझ में आ रहा है कि नहीं? वेदिका कदम आवाज नहीं आ रही है. कोई बात, हेडिंग डालते हैं प्रोफेस. हेडिंग डालते हैं प्रोफेस. कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेप कौन सी हुई? प्रोफेस. Prophase. Perfect. Nuclear membrane start disappearing. Start disappearing. Nuclear membrane start disappearing. DNA condensed. Be on mute. Ajan Tamboli, be on mute. DNA condensed to form chromosome.
अभी ये कोई नया एडमिशन हुआ था मिस्टर डॉक्टर सोनम ने, आर यू देयर? आर यू देयर? शिरडी से एक एडमिशन हुआ था, कौन था बच्चा वो? अरे मैं कौन था सार्थक बच्चा? चौहान। क्या नाम है? सार्थक चौहान सर, मैं जोर से। सार्थक चौहान। सार्थक सार्थक चौहान। चौहान। यस यस। सार्थक समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर थोड़ा। धीरे धीरे आएगा, अभी अपन रिकवरी क्लासेस लगाएंगे तो और बेटर ढंग से करेंगे, लेकिन आपके लिए नया टॉपिक है पूरा, इसलिए तकलीफ नहीं है बहुत ज्यादा। ओके। यस सर। क्रोमोसोमल एंड्स आर नॉट विजिबल। इतने ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं कि उनके सिरे दिखते नहीं है क्लियर। Therefore, chromosomes appears like a ball of wool called as spirim stage. Called as spirim stage. जो पहले कुछ इस तरह से थ्रेड पड़े थे, क्रोमोसोम के जो थ्रेड पड़े थे, वो क्रोमेटिन थ्रेड पड़े थे, वो थोड़े से कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्म में होने लगे। इज इट? क्योंकि वो थोड़े से थिक हो गए। यूजुअली जो होता है दैट इज क्रोमेटीन, इसको कहते हैं क्रोमेटीन, क्योंकि ये थिन होता है। एंड दिस वन इज थिक क्रोमेटीन। थिक क्रोमेटीन, और आई शुड से क्रोमोसोम। मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया था, वन क्रोमोसोम हाउ मेनी क्रोमेटिड्स? Two chromatids. Two chromatids. परफेक्ट परफेक्ट। और वो दोनों क्रोमेटिड्स क्या कहलाते थे एक दूसरे के? Sister chromatid. Sister chromatid. Sister chromatin. परफेक्ट। ओके। Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज। Sir, what do you mean by chromosomal ends not visible? अभी ये थिन स्ट्रक्चर था, ये थिन स्ट्रक्चर में एक पार्ट मुझे ये दिख रहा है और एक पार्ट मुझे ये दिख रहा है। इज इट? Yes, sir. नाउ इफ आई अरेंज 23, मुझे बताना है यदि आपको दिख पाए तो। कैन यू फाइंड आउट? No, sir. Yes. दिस इज ओनली द स्टेटमेंट। ओके Okay. परफेक्ट। क्योंकि थिकनेस बढ़ गई ना, एक थ्रेड है, वो थ्रेड इतने ज्यादा उसमें कंडेंसेशन आ गया है कि समझ नहीं पड़ रही, क्योंकि उसका कंटेंट डबल हो गया। कंटेंट क्यों डबल हो गया? क्योंकि इट इज ऑलरेडी बीइंग क्रॉस द एस फेस, सिंथेसिस फेस को क्रॉस कर चुका है वो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Spindle fiber
completely organized, and ER Golgi disorganized. क्योंकि वो न्यूक्लियस इतना बढ़ गया है कि जो ऑर्गेनल्स है वो डिसऑर्गेनाइज्ड या डिसअपीयर टाइप के हो. Noted? Excuse me, sir. Yes, excused. Sir, in that statement, fifth statement, what is written after the ball of? Ball of wool. लोकर लोकर रे बाबा, वूल म्हणजे लोकर. Okay, sir. Okay. Okay. The next one is spindle fiber has maximum diameter in the middle. Spindle fiber has maximum diameter in the middle. लेकिन स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं. But the fiber are of 3 types. कौन कौन से? I hope visibility is there. Yes. One is continuous fiber. One is discontinuous fiber. One is continuous fiber, one is discontinuous fiber, and one is chromosomal fiber. Chromosomal fiber. One is continuous fiber, one is discontinuous fiber, and one is chromosomal fiber. What are continuous, discontinuous fibers? देखिए. Centriole at the opposite pole. Spindle fibers start to form. Like this. But some fibers connect each other, pole to pole. Some fiber connects each other, pole to pole. These fibers are continuous fiber. Some fiber comes to the center and then joins nothing. These are discontinuous fiber. And some fiber joins to kinetochore. I hope you remember kinetochore. Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes. So those fibers that joins chromosomes, those fiber that joins chromosome at kinetochore is known as what? Chromosomal fiber. Please know. जो पोल टू पोल जा रहे हैं, सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल जा रहे हैं. ओके, जुनैद ने पूछा एस्ट्रल रेस. यदि ये प्लांट सेल है तो यहां पर एस्ट्रल रेज नहीं होंगी, और यदि ये एनिमल सेल है तो यहां एस्ट्रल रेज होंगी. एस्ट्रल रेज in animals, whereas anestral in plants. Please know. सार्थक चौहान, बी ऑन म्यूट. सार्थक, आप लोग बच्चों अनम्यूट क्यों कर लेते हो?
sharing the image. Noted. Ajan, Sarthak, Ayan, Junaid. Noted. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों बहुत सिंसियर नोट में फिर से एक बार रिपीट कर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई बहुत रटने की जरूरत नहीं. G1S, G2 और M. G1S, G2 इंटरफेस, M माइटोटिक फेज. सार्थक एंड अजान ध्यान से सुनिए. G1 ग्रोथ 1, S सिंथेसिस फेज, G2 ग्रोथ फेज यानी सेकंड ग्रोथ. G1 फर्स्ट ग्रोथ, G2 सेकंड ग्रोथ, बीच में S फेज यानी सिंथेसिस फेज. G1S और G2 और इसके बाद आती है M जिसमें डिवीजन हो. जिसमें डिवीजन हो रहा है तो उसके पहले बाय डिफॉल्ट वो S फेज को क्रॉस कर चुकी है, और S को यदि क्रॉस कर चुकी है तो उसमें डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, नॉट द क्रोमोसोम. डीएनए कंटेंट डबल्स, नॉट द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं हुए, उसका डीएनए कंटेंट डबल हो. इसीलिए मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा थिकन बना. क्रोमोसोम 46 के 46 ही होंगे एस फेज में, बट उनका कंटेंट यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो कंटेंट विल बी डबल. इट इज एज गुड एज कि मेरे शरीर में मेरा सारा कंटेंट डबल हो जाए. सो व्हाट यू एक्सपेक्ट, ये शर्ट की बटनें टूटने लगेंगी. द रीजन अंदर का कंटेंट डबल हो गया है, आई एम स्टिल सिंगल इन नंबर. क्रोमोसोम इज स्टिल सिंगल इन नंबर, but the DNA content increases. Therefore, nuclear membrane cannot accommodate such a big or doubled content of DNA. So it has to be disappear. पहला ही पॉइंट, मतलब रटने की कहीं जरूरत नहीं भाई. न्यूक्लियस जैसे डिवाइड होना था, क्योंकि न्यूक्लियस को ही तो डिवाइड कर रहे हैं आप. फेस का ही नाम कैरियोकाइनेसिस का है. कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन. तो जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है उसका कंटेंट इतना बढ़ गया है एस फेज की वजह से, डीएनए कंटेंट इतना डबल हो गया है कि वो अकोमोडेट ही नहीं हो सकता. तो सेल प्रेशर दे रही कि इससे बेटर है तुम दो न्यूक्लियस बन जाओ. भाई मैं एक न्यूक्लियस पे तो अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो तुम दो न्यूक्लियस हो जाओ. और उन्हीं दो न्यूक्लियस के होने को तो हम कह रहे हैं न्यूक्लियस का डिवीजन. उन्हीं दो न्यूक्लियस को होने को तो कह रहे हैं न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस. उसकी पहली फेज है प्रोफेज. पहली फेज, प्रो मींस फर्स्ट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी. डीएनए इतना डबल हो चुका है कि उसे कंडेंस्ड होना पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस में अकोमोडेट ही नहीं हो पा रहा. कंडेंस्ड होने के बावजूद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जा रही है क्योंकि अकोमोडेट ही नहीं हो पा रहा. डीएनए कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम. इतना कंडेंस हो जाता है कि क्रोमोसोम एंड्स दिखते ही नहीं है और एक बॉल की तरह दिखने लगते हैं जहां सपा के बीच में जमा हो गए. उसे स्पाइरम स्टेज कहते हैं. स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली बनने लगता है और ऑर्गन जो ऑर्गेनल्स है वो डिसअपियर होने लगता है. तो स्पिंडल फाइबर जब बनते हैं तो तीन टाइप के. एक जो पोल से पोल पर जाएगा उसे कंटिन्यूस कहेंगे, जो पोल से सेंटर तक आएगा उसे डिसकंटिन्यूस कहेंगे, और एक जो क्रोमोसोम को जोड़ेगा काइनेटोकोर उसे क्रोमोसोमल कहेंगे. इस बात को ध्यान रखिए कि जब पोल की तरफ जाते हैं तो पोल की तरफ होता है नेगेटिव और सेंटर पे होता है पॉजिटिव. तो स्पिंडल फाइबर जब बनते हैं तो पॉजिटिव मूवमेंट से बनते हैं, जब वापस जाते हैं तो नेगेटिव मूवमेंट से वापस जाते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Should I erase this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखिए अब प्रोसेस में क्या है, क्योंकि प्रोफेज हो गया तो अब स्टेज आई मेटाफेज. मेटा मतलब होता है बच्चों बीच में, और बीच में होने का मतलब दिस इज पोल
spindle fiber. This spindle fiber has chromosome. Like this. Can you see the diagram? Yes, sir. So इक्वेटर प्लेट पर अरेंज होगा. अब इक्वेटर प्लेट पे जो अरेंज हुए तो इसके पहले मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. नंबर 1, chromosomes arranged on equator plate. Chromosomes arranged on equator plate. Or point number 2, single metaphasic plate. Single metaphasic plate. Single metaphasic plate मतलब ये जो क्रोमोसोम्स हैं कैसे बना रहे हैं. इक्वेटर पे तो लाना पड़ेगा ना उसको. Like this. सिंगल मेटाफिजिक प्लेट मतलब केवल एक क्रोमोसोम की प्लेट बनी, सारे के सारे 46 वो एक लाइन में अरेंज होंगे, तो सिंगल मेटाफिजिक प्लेट बनी. नंबर 3, स्पिंडल फाइबर कनेक्ट टू. कहां पर कनेक्ट होते बताया था? कहां पर बताया था? Kinetochore. या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है या तो मेरे बताने के पहले ही सारा पता हुआ है. स्पिंडल फाइबर बाइंड्स और कनेक्ट टू काइनेटोकोर. और काइनेटोकोर कितने होते हैं ये भी बताया था. 1 क्रोमोसोम, कितने क्रोमेटिड? Two kinetochore. chromatids. 2 क्रोमेटिड्स. और कितने काइनेटोकोर? 2 kinetochore. Two kinetochore. 1 centromere. 1 centimeter. कौन बोला 1 सेंटीमीटर? वेरी नाइस. कौन बोला? जुनैद. 1 सेंटीमीटर. ये भी बात ध्यान रखने वाली थी क्योंकि केवल एक ही स्टेज ऐसी आएगी जहां मैं सेंट्रोमेयर में 2 करूंगा स्प्लिट. ये तो होगी बच्चों मेटाफेज. ये तो होगी मेटाफेज. नेक्स्ट वन इज एनाफेज. एनाफेज में क्रोमेटिड स्टार्ट सेपरेशन. क्रोमेटिड स्टार्ट. यहां पर कितने क्रोमेटिड है? इसमें इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है? 2 chromatids. And these 2 chromatids are known as sister chromatids of each other. Yes or no? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ऐसे सारे 46 कंप्लीट 46 में ऐसे सेपरेट होना शुरू कर देते हैं क्रोमेटिड. तो जस्ट इमेजिन जब ये इधर से इधर खींचेगा वो उधर से उधर खींचेगा पोल की तरफ, वो नेगेटिव की तरफ और ये भी नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा क्रोमेटिड. यस और नो? Yes, sir. Sir. समझिए बात को. अभी देखिए मैंने डायग्राम इतना बढ़िया तरीके से आपको बताया कि यहाँ से सेपरेट हो गया और जैसे ही सेपरेट हो गया तो आप देख रहे हैं जब वो खींचेगा तो ये वी शेप बन जाएगा, उल्टा वी. देखिए देखिए. यस और नो? यस और नो? यानी कहीं पर शेप ऐसा दिखने लगेगा तो कहीं ऐसा दिखने लगेगा, कहीं ऐसा दिखने लगेगा तो कहीं ऐसा दिखने लगेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके.
So when different shapes, we start separation, different shapes like यही लिखता हूं, different shapes like B, J, L, I appears. Different shapes like B, J, L, I appears. क्योंकि अपने अपने पोल की तरफ खींचने लगेंगे तो डिफरेंट टाइप के शेप्स आपको दिखने लगेंगे, बराबर? ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज स्टार्ट सेपरेशन. यहां लिखता हूं थर्ड पॉइंट, chromatids start moving towards poles, अपने अपने पोल की तरफ जाने लगेंगे. और ये एक वो स्टेज होगी जहां पर अभी जो बोला जुनैद ने, ये वो स्टेज होगी जहां पर अपने अपने क्रोमेटिड का अपना अपना सेंट्रोमियर भी होगा, मतलब 2 सेंट्रोमियर. नंबर 4, at this stage only, one chromatid has its own centromere. At this stage only, one chromatid has its own centromere. यानी केवल इसी स्टेज पर यदि आप मुझसे कहें तो इसका अपना सेंट्रोमियर होगा और इसका अपना सेंट्रोमियर होगा, because they are separating. So जो सेपरेट हो रहे हैं क्रोमेटिड ये अपने अपने सेंट्रोमियर को लेकर, क्योंकि हमें पता है वो कंटेंट डबल था ना, थिक था, जब उधर जाएगा तो थिनिंग होने लगेगी, और थिनिंग होने लगेगी तो वो क्रोमोसोम नहीं, वो क्रोमेटिन बन जाएगा. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. पढ़ना पड़ेगा यार, क्योंकि ये सेल बायोलॉजी जो है वैसे तो मजा नहीं आएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा आपको खुद से. मैं इसको रिवाइज जरूर कराऊंगा ऑफलाइन में, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है बस. ये क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट, क्रोमेटिड सेपरेट हुए, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हो गए थे थिकनेस की वजह, तो वो सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे थे, और वो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने लगे. जब सेपरेट होने लगे तो उनकी थिनिंग होने लगी, तो जाते जाते वो क्रोमेटिन बन गए. दैट्स इट. लास्ट फेज है टीलोफेज. कितना नोट कीजिए, फिर टीलोफेज भी लिखा हूं आपको, और आपको एक वीडियो भी शेयर करूं. प्लीज नोट. Dr. Monica, are you there? Yes, sir. I'm sharing you URL, YouTube का URL शेयर कर रहा हूं मैं. Yes, sir. मैं ग्रुप पर शेयर कर रहा हूं, वहां से आपको शेयरिंग में डालना है उसको, मैं जब बोलूं तब. Okay, sir. ओके, परफेक्ट. रिपीटिंग माय ओवरऑल स्टेटमेंट्स माय डियर. टीलोफेज, पहले टीलोफेज बता दूं. टीलो मतलब होता है टर्मिनल. अब ये खत्म होने वाली फेज, तो इसको मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज. अब रिवर्स ऑफ प्रोफेज क्यों कहा मैंने? क्योंकि जो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, वो टीलोफेज में रीअपियर होने लगेगी, क्योंकि यहाँ से फरो बन जाएगी. यहाँ से इस तरह से फरो बनने लगती, और यहाँ से ये अंदर आने लगता है, और ये सेल 2 में डिवाइड होने लगता है. यानी ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखने लगता है आपको, लाइक दिस. यहां बनाता हूं ये पोल, ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम्स, और ये वी शेप,
ये एल शेप, जे शेप, ये क्रोमोसोम इस तरह से यहाँ वापस आने लगे लाइक दिस, और यहाँ से फिर ये सेल डिवाइड हो जाती है और ये सेल फर्क हो जाता है। वो कैसे कैसे होता है ज्यादा बेटर, क्योंकि ये थोड़ा सा एनिमेटेड मोड में मुझे आपको बताना पड़ेगा। डॉक्टर मोहाडिकर, कैन यू शेयर दिस URL लिंक दैट आई शेयर्ड ऑन ग्रुप? Yes, sir. I will share it now. यस यस, प्लीज शेयर। एंड आप भी अनम्यूट करके रहिए ताकि आवाज आएगी, क्योंकि होस्ट आप हैं। Yes, sir. Can you see it? यस, बट आवाज नहीं आ रही। In this module, you will learn about mitosis. फुल स्क्रीन, फुल Mitosis is a स्क्रीन। process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, परफेक्ट। mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, एवरीवन, इट इज ऑडिबल? metaphase, anaphase, and Yes, sir. Yes, sir. telophase. परफेक्ट, यस। An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, पॉज इट। परफेक्ट। देखो बच्चों, अंदर की तरफ कैसे पतले पतले थ्रेड दिख रहे हैं, क्रोमेटीन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इन थ्रेड में से देखिए अभी स्पिंडल, ये न्यूक्लियस है, तो जो सेंट्रोजोम है उसमें से अब देखिए स्पिंडल फाइबर भी निकलते हुए दिख रहे हैं। यस, कंटिन्यू। the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. पॉज Each chromosome देखो बच्चों, अग्रीड? कैसे वो पतले से थ्रेड कैसे थिक क्रोमोसोम में बदल गए? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर क्रोमोसोम जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के, इसमें साइड में होगा काइनेटोकोर और बीच में होगा सेंट्रोमियर। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So 1 chromosome, 2 chromatids, 1 centromere, and 2 kinetochore. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Continue. chromosome has 2 sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Pause. See, here 3 types of fibers you can see. One is moving from pole to pole. This is which fiber? Continuous fiber. Continuous fiber. Continuous. One comes to the middle but not connected to anywhere. This one is what? Discontinuous fiber. It's continuous Fiber. fiber. One is connected to kinetochore. This one is what? Chromosomal fiber. Chromosomal fiber. Perfect. Please continue, Dr. Mohadi. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores and the daughter chromosomes along with the divided शेप दिख रहा है, धीरे से V की तरह होता जा रहा है वो। Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. What separated? Chromatids, not the chromosome. What separated?
Chromatids. Chromatids. एक्चुअली बच्चों ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये सही पूछो तो क्या है, ये वही है जो मटर डुप्लीकेट हुआ था। पहले तो सिंगल थ्रेड था, मटेरियल डुप्लीकेट हो गया तो उसे अपने सिस्टर क्रोमेटिड कह दिया और वो एक सेल में चला गया, एक दूसरे सेल में आ गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. प्लीज कंटिन्यू। Centromere move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles Pause, of the pause, spindle pause. also दिखा वी अल्फाबेट? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, प्लीज कंटिन्यू। move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, Pause, resulting pause. in two. आपने देखा बच्चों, if it was the case of animal cell, then it was a centrifugal force. In case of plant, it is centripetal force. एक अंदर से बाहर की तरफ, एक बाहर से अंदर की तरफ लग रहा था। सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, नॉट इन एनिमल सेल। सो यहाँ सेल प्लेट फॉर्म हो रही है इन केस ऑफ प्लांट्स, but in case of animal it was cell furrow. Simply it furrows, a furrow will form and nucleus will divide into, cell will divide into two. So in case of animal cell, cytokinesis is by cell furrow. In case of plant cell, it is by cell plate method. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. Daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. Mitosis involves 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. In prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form the chromosomes. Stop sharing. Perfect. मजा आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है, समझने के बाद जब ऐसा हम वीडियोस को देख लेते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव, वो एनिमेटेड मोड में बहुत अच्छा दिख जाता है ना। हम लोग भी अब कोशिश नहीं, हम लोगों ने भी एक स्मार्ट बोर्ड अब ले लिया है जिसमें मैं आपको बहुत बढ़िया से कलरफुल पेन से मैं आपको ऐसे डिविजन्स बताता रहूंगा, तो फिजियोलॉजी में बहुत बड़े मजे से हम लोग उसे पढ़ेंगे। बट आई होप कि आपको इसमें 2 असाइनमेंट, प्लीज नोट द असाइनमेंट, प्लीज नोट द असाइनमेंट। Assignment number 1. Cytokinesis. Cytokinesis in plants and animals. Cytokinesis in plants and animals. ये आपको लिखना है, जैसा भी मैंने बताया सेल फरो और सेल प्लेट, ये आपको लिखना है। Assignment number 2. Assignment number 2, importance of mitosis. अभी डायग्राम में आपने देखा लिजार्ड की टेल रिपेयर हो रही थी, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने पहले भी आपको बताया था हीलिंग एंड रिपेयरिंग, इज इट? Yes. Yes. Yes, sir. ये तो लिजार्ड और रेप्टिलियंस क्या करते हैं अपने डिफेंस के लिए, जैसे ही आप उन पर अटैक करते हैं अपनी टेल को तोड़ देते हैं। इसे कहते हैं अपने खुद के मटेरियल को तोड़ देना, इज नोन एज ऑटो समथिंग वर्ड मैं मिस कर रहा हूं, जिसमें अपने ही इसको तोड़कर आपको डराने के लिए जैसे उसकी पूंछ हिलने लगती है टूटी हुई, आप घबरा के 2 कदम पीछे आ जाते। सो इट्स अ मोड ऑफ डिफेंस दैट इज acquired during the evolutionary course of time.
है ना। तो ये अपने ऑर्गन को तोड़ देना, अपने ऑर्गन को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये डिफेंस करते हैं और उनका जो प्रेडेटर था वो दूर भाग जाता, घबरा, क्योंकि वो अकेली सिंपल मूवमेंट करते लगती तेजी से, बराबर। तो वो टूटा हुआ टेल फिर से रीजनरेट होता है ड्यू टू माइटोसिस, हीलिंग एंड रिपेयरिंग। अंडरस्टूड? Yes, sir. उसको तो मैंने एक बताया, उसको आपको डिटेल लिखना है। तो 2 असाइनमेंट लिखने हैं आपको। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है, सेल प्लेट प्लांट में बनती है, सेल फोर इसमें बनती है, और इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. माइटोसिस Yes. क्लियर हुआ? थोड़ा सा सिंपल था माइटोसिस। Yes, यू sir. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे नए कैंडिडेट को समझ में आया? योगेश, हर्षदा, अजान, समझ में आया? अरे समझ में आया? Yes, sir. Yes. अयान, Yes, sir. जुनैद, परी, पलक, Yes, sir. खुशी, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मियोसिस जो है, मैं आपको पहले एनिमेटेड वीडियोस कुछ भेजूंगा, उसको देख के रखिए बच्चों, फिर समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? एनी डाउट इन टुडे सेशन? No, Yes. sir. चलिए, डॉक्टर मुआड़ीकर, स्टॉप रिकॉर्डिंग। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। आप ही